आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। वज़ीर आला केसीआर की ज़ेर-ए-सदारत काबीना इजलास का इनेकाद, तेलंगाना की तासीस तकारीब के शानदार इनेकाद और दीगर अहम उमूर पर किए गए फैसले। तेलंगाना मिसाली सरमायाकारी का मरकज, मेडाट्रांग कंपनी 3000 करोड़ की सरमायाकारी करेगी। वज़ीर आईटी केटीआर का न्यूयॉर्क में सरमायाकारों के गोलमेज इजलास से खिताब। बालाकोटी में मिनी टेक्सटाइल पार्क का जल्द ही रखा जाएगा संग बुनियाद। अराजी की खरीदारी और मुख्तलिफ मंजूरियों की भी इजाजत का मरहला मुकम्मल। वजीर दयाकर राव ने अलसतह इजलास में लिया जायजा। रियासत के हर गरीब और मुस्तहिक खानदान को डबल बेडरूम मकानात किए जाएंगे फराहम। कमला नगर में डबल बेडरूम मकानात की हवालगी के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। वारंगल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की तामीर का काम तेजी के साथ जारी। अस्पताल का 70% काम मुकम्मल, सितंबर तक मुकम्मल करने के लिए कोशिशें जारी। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में गर्मी की लहर जारी। खम्मम जिले में दर्जा 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज। वजीर आला कर्नाटक की हैसियत से बिलाखिर सिद्धारमैया के नाम का ऐलान। डी के शिव कुमार नायब वजीर आला मुकर्रर। 20 जून को होगी हल्फ बर्दारी। सिद्धारमैया और शिव कुमार के दरमियान बारी बारी इख्तिदार की मुंतकिली का फैसला। गुज़िश्ता 5 दिन से जारी तात्तुल ख़त्म। और अमेरिकी सदर जो बाइडेन और वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन पहुंचे हिरोशिमा। जुमा को होने वाले G7 सरबराह इजलास में करेंगे शिरकत। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना रियासती काबीना का एक इजलास वज़ीर आला केसीआर की ज़ेर-ए-सदारत मुनक्किद हुआ। नए सेक्रेटेरिएट की तामीर के बाद यह पहला काबीना इजलास था जिसकी वज़ीर आला ने सदारत की, जिसमें तेलंगाना की तश्कील के 10 साल की तकमील के ज़िमन में तासीसी तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद का फैसला किया गया और इस दौरान तेलंगाना के अवाम में तेलंगाना के 10 साल की हुकूमत की कामयाबियों का जिक्र करने की भी हिदायत दी गई। इसके अलावा दीगर फैसलों को भी मंजूरी दी गई। इजलास में वज़ीरा मोहम्मद महमूद अली, हरीश राव, दयाकर राव, श्रीनिवास यादव, श्रीनिवास गौड़, सत्यवती राठौड़, अजय कुमार, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दीगर मौजूद थे। అనేకమైనటువంటి నిర్ణయాలు కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా గత 9 సంవత్సరాల కాలంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించిన అద్భుత విజయాలను 21 రోజుల పాటు ఆయా వర్గాల ప్రజల అందరి భాగస్వామ్యం చేత అన్ని నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లో 21 రోజుల పాటు సంబరాలను జరపాలని, ఈ విజయోత్సవాలను జరపాలని చెప్పి నిర్ణయించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా అన్ని రంగాల్లో ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం దేశానికి మార్గదర్శకంగా ఎన్నో అద్భుత విజయాలు సాధించింది. సో ఆ విజయాలు ఎక్కడెక్కడైతే సాధించినమో ఒక్కొక్క రోజు ఒక రంగం మీద మరి 21 రోజుల పాటు అన్ని జిల్లాల్లో, అన్ని నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లో, మరి గ్రామాల్లో ఈ యొక్క విజయోత్సవాలను ప్రభుత్వం అధికారికంగా ఘనంగా జరపాలని చెప్పి నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు ఈ దశాబ్ది ఉత్సవాల సందర్భంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మరో ముఖ్యమైనటువంటి నిర్ణయం కూడా తీసుకున్నారు. అది ముఖ్యంగా వృత్తి కులాలు ఎవరైతే కుల వృత్తులను నమ్ముకొని జీవిస్తా ఉన్నారో వారిని మరింతగా ముందుకు తీసుకుపోవాలని, వృత్తులను కాపాడాలని, ఆర్థికంగా బలోపేతం చేయాలని చెప్పి గౌరవ మంత్రివర్యులు, బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రివర్యులు గంగుల కమలాకర్ గారి అధ్యక్షతన గౌరవనీయులు శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, గౌరవనీయులు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు, గౌరవనీయులు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు జగదీష్ రెడ్డి గారి సభ్యులుగా ఒక సబ్ కమిటీ, కేబినెట్ సబ్ కమిటీని ఈరోజు ఫామ్ చేయడం జరిగింది. అయితే ఈ సబ్ కమిటీ
ముఖ్యంగా విశ్వ బ్రాహ్మణులు, నాయి బ్రాహ్మణులు, రజకులు, మేధరి, కుమ్మరి ఈ తదితర వృత్తి కులాల వారికి ఆర్థిక చేయూతను అందించడానికి విధి విధానాలను వెంటనే ఫైనల్ చేయాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశించడం జరిగింది. అయితే వీరికి ఒక్కొక్కరికి 1 లక్ష రూపాయల వరకు ఆర్థిక సహాయం అందించే విధంగా వారికి ఏ రకంగా అందించాలి, ఎంత త్వరితగతిన గ్రౌండ్ చేయాలి, సబ్సిడీ పోర్షన్ ఎంత, ఈ అన్ని విధి విధానాలను కూడా తొందరగా ఫైనల్ చేసి దశాబ్ది ఉత్సవాల సందర్భంగా ఈ సబ్ కమిటీ మరి విధి విధానాలను ఫైనల్ చేసినట్టయితే ఈ దశాబ్ది ఉత్సవాల సందర్భంగా వీటి పంపిణీని ప్రారంభించాలని చెప్పి కూడా ఈరోజు కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా గతంలో కూడా ఈ వృత్తి కులాలను బలోపేతం చేయడానికి ప్రభుత్వం కొన్ని సందర్భాల్లో నిధులు అందించాం. ఇప్పుడు కూడా ఈ వృత్తి కులాలను మరింత బలోపేతం చేయాలని, ఇంకా ఈ కులాలే కాకుండా ఇంకెవరి నుంచైనా ఉన్నట్టయితే వాటిని కూడా పరిశీలించాలని చెప్పి కూడా కేబినెట్ సబ్ కమిటీని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశించడం జరిగింది. ఇకపోతే तेलंगाना के वजीर आईटी और बल्दी नजर के तारक रामाराव ने कहा कि तेलंगाना मिसाली सरमायाकारी का मरकज है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि रियासत किसी भी किस्म की तजारती यूनिट्स के क़याम के लिए दरकार तमाम वसाइल, तरक्की पसंद सनद दोस्त पॉलिसियों और मुस्तहकम इख्तियारात वाले माहौल दोस्त निजाम की हामिल है। तारक रामाराव, जिन्होंने रियासत में सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए अपने दौरे अमेरिका के मौके पर अब तक कई कंपनियों को रियासत में सरमायाकारी के लिए कामयाबी के साथ राग़िब किया है, के सिलसिले की कड़ी के तौर पर न्यूयॉर्क में सरमायाकारों की गुलमेज इजलास में शिरकत की, जिसका एहतमाम मुश्तरका तौर पर हिंदुस्तानी कौंसलेट न्यूयॉर्क और यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम की जानिब से किया गया था। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना अपने 14 तरजीही शोबेजात में कई तरह के मौके रखती है। तेलंगाना ऐसे सरमायाकारों के लिए मिसाली गेटवे बनने तैयार है जो हिंदुस्तान को अपने मरकज के तौर पर मुंतखब करना चाहते हैं। तारक रामाराव ने न्यूयॉर्क के साथ अपने गहरे ताल्लुकात का जिक्र किया, जहां उन्होंने तालीम हासिल की थी और काम किया था। इस मौके पर हिंदुस्तानी कौंसल जनरल रणधीर जायसवाल ने इतराफ करते हुए कहा कि तेलंगाना आलमी तिजारती तबादला ख्याल के लिए अटूट हिस्सा बन गया है। उन्होंने तारक रामाराव की बेमिसाल हरकियाती शख्सियत की सताइश की। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईटी जयश रंजन, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन एंड एनआरआई उमूर सी विष्णुवर्धन रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। इसी दौरान तारक रामाराव ने 3000 करोड़ रुपए से जायद की सरमायाकारी के लिए आगे आने पर मेडाट्रांग कंपनी से इजहार तशक्कुर किया। यह कंपनी तिब्बी आलात के शुबे में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करेगी, जो मुल्क की सबसे ज्यादा सरमायाकारी में से एक होगी। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने इस खुसूस में ट्वीट करते हुए कहा कि यह कंपनी आलमी सतह की निगहदाश्त सेहत टेक्नोलॉजी के हामिल है, जो सबसे ज्यादा चैलेंज से भरे सेहत के मसाइल को दूर करने के इक़दाम करती है और इख्तियारात के जरिए जिंदगियों को तब्दील करती है। वजीर पंचायत राज उदय तरक्की रहबली जाकर राव ने कहा कि वजीर आला केसीआर के वादे के मुताबिक वजीर केटीआर के ताउन से पालकपुर्ती हल्के कोड़कुंडला में कायम किए जाने वाले मिनी टेक्सटाइल पार्क का जल्द ही सनग बुनियाद रखा जाएगा। मुतालिका महकमों के अफसरान को हिदायत दी गई कि वो सिलसिला मॉडल ग्राउंड में इंतजाम अंजाम दे। वजीर दयाकर राव ने TSIIC के MD EV नरसिम्हा रेड्डी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर महड टेक्सटाइल्स के एडिशनल डायरेक्टर वेंकटेशम कोडकंडला पस्तूरी मधुसूदन रामूजी और दीगर के साथ सेक्रेटेरिएट में जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर वजीर रहबली दयाकर राव ने कहा कि कोडकुंडला के आसपास के इलाकों में हैंडलूम वर्कर्स बड़ी तादाद में हैं और मुंबई, भिवंडी और सूरत जैसे मकामात के लिए हिजरत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद तमाम शोबों में जो तरक्की और तब्दीली आई है, उसी तरह हैंडलूम सेक्टर में भी तब्दीलियों की जरूरत है। इसके मुताबिक जैसे ही यह मामला सीएम केसीआर की तवज्जो में लाया गया, कोड़कुंडला में मिनी टेक्सटाइल पार्क के क़याम की इजाजत दी गई और वजीर केटीआर ने भी ताउन किया। इसके साथ ही हर किस्म की इजाजतें मिल चुकी हैं और अराजी की खरीदारी का अमल भी मुकम्मल हो चुका है। ताहम अगर किसी मुतय्यन जगह पर पार्क कायम किया जाता है तो उसे कम से कम रकम पर दस्तयाब कारकुनों के लिए मुख्तसर करके रोजगार के मौके को बेहतर बनाने का फैसला किया गया है। वजीर ने मुतालिका महकमों के अफसरान को फौरी काम शुरू करने का हुक्म दिया और कहा कि पहले मरहले का काम सितंबर तक मुकम्मल होना चाहिए। वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीवास यादव ने रुकन असेंबली जुबलीस और सदर BRS जिला हैदराबाद एम गोपीनाथ, BRS रुकन कानून साज काउंसिल बानी देवी, मजलिस रुकन कानून साज काउंसिल मिर्जा रहमत बेग के हमरा जुबली हिल्स हल्का असेंबली के रहमत नगर डिवीजन के कमला नगर में तामीर किए गए 210 मकानात पर मुश्तमिल डबल बेडरूम
कॉलोनी का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस दौरान रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने डबल बेडरूम के इस्तीफादा कुनिंदगान को पोजीशन सर्टिफिकेट्स के साथ चाबियां हवाले की। इस प्रोग्राम में आरडीओ सुनीता, एमआरओ नवीन, हाउसिंग अफसर वेंकट रेड्डी, मुकामी कॉर्पोरेटर सीएन रेड्डी, राजकुमार पटेल, दिदीपिया राव और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की यह आरजू थी कि हर गरीब के लिए एक घर हो, जिसको मद्देनजर रखते हुए वजीर आला केसीआर ने डबल बेडरूम मकानात की स्कीम का आगाज किया, जिसके तहत रियासत के हर गरीब खानदान को डबल बेडरूम मकानात फराहम किए जा रहे हैं। ఈ కొండ మీద ఎట్లా కట్టిందంటే మా ఎమ్మెల్యే గారు పట్టుబట్టి కట్టించారని చెప్పి వారి గురించి చెప్తూ దాంతో పాటు ఇల్లు తీసేటప్పుడు 126 ఇల్లు మొత్తం ఇక్కడ 126 ఇల్లు తీసినప్పుడు ఉండే, కానీ రేపు ఎప్పుడన్నా అవసరం ఉంటుంది ఇంకా పేదరికం ఇక్కడ ఉన్నది అని వారు పెద్ద మనసు చేసుకుని 210 ఇల్లు కట్టించారు। కానీ మీటింగ్ రాకముందు మా ఎమ్మెల్సీ గారు చెప్తూ, మా గోపీనాథ్ గారు చెప్తారు, మా కార్పొరేటర్లు అంటారు, అరే గడబడ కర్రే సాబ్ మేరే గరానయా మాకు ఇల్లు రాలేదని చెప్పి కొంతమంది బాధపడుతుండ్రు, అరుస్తుండ్రు అని చెప్తుండ్రు। ఎవరు కూడా బాధపడవలసినటువంటి అవసరం లేదు। ఇప్పుడు నీకు గోపీనాథ్ గారు ఇప్పుడు ఏం చెప్పేది, 10కి ఇస్తున్నారని చెప్పి 89 అంటే ఇంకా 11 కలిపితే 100 అవుతాయి, ఆ 10 కలిపితే 110 అవుతాయి, అంటే 11 10 21 ఇంకా 100 121 ఇల్లు వీళ్ళ విధంగా ఇంకా ఉన్నాయా। గోపీనాథ్ గారికి ఇంతకుముందే చెప్పిన, మీ బస్సులో ఉన్న వాళ్ళతో ఒక కమిటీ వేయండి, నిష్పక్షపాతంగా ఎవరికి సేఫ్ లేకుండా న్యాయబద్ధంగా। ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ కొండ మీద जिले वरंगल में हुकूमत की जानिब से वरंगल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की तामीर का काम तेजी के साथ जारी है। सितंबर तक इसकी तामीर का काम मुकम्मल करने के लिए कोशिशें की जा रही है। इसके लिए 3 शिफ्टों में काम हो रहा है। इस हमा मंजिला अस्पताल में कई शोबजात होंगे। गरीब आवाम को कॉर्पोरेट तिब्बी खदमात फराहमी के निशाने के साथ 1200 करोड़ रुपए के सरफे से 56 एकड़ अराजी पर 2000 से ज्यादा बिस्तरों वाले इस अस्पताल की तामीर का काम किया जा रहा है। इसके तकरीबन 70% काम मुकम्मल कर लिए गए हैं। वज़ीर सेहत हरीश राव ने दशहरे तक इसकी तामीर की तकमील की ओहदेदारों को हिदायत दी, जिस पर 3 शिफ्टों में अस्पताल का काम तेजी के साथ जारी है। वरंगल जेल के मकाम पर 24 मंजिला इस असरी अस्पताल की तामीर की जा रही है। सितंबर तक अस्पताल के पहले मरहले की तिब्बी खिदमात का आगाज कर दिया जाएगा। मजलिसी रुकन असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन मिराज ने जीएचएमसी, एचएमडब्ल्यूएस एंड एसबी और टीएसएस पीडीसीएल के अफसरान के हमरा दौरा करके अहमदनगर डिवीजन के तहत सैयदनगर और आसपास के इलाकों में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर अहमदनगर के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर सरफराज सिद्दीकी, साबिक कॉर्पोरेशन मेंबर जीएचएमसी महमूद हुसैन, अहमदनगर डिवीजन के मजलिस के प्राइमरी यूनिट मेंबरान और दीगर मौजूद थे। आज नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी अहमदनगर का तफसीली दौरा किया गया। अहमदनगर डिवीज़न में जो सैयदनगर एरिया में दौरा किया गया। मेरे साथ में नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जनाब सरफराज साहब और साबिक़ा कोऑप्शन मेंबर महमूद हुसैन इंजीनियर साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर अहमदनगर डिवीज़न के मौजूद थे। उसके साथ साथ जीएचएमसी, वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी, हॉर्टिकल्चर, दूसरे भी महकमों के लोग तमाम के तमाम मौजूद थे। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में, हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन न सिर्फ आए दिन अवाम के दरमियान में रहती है, अवाम के मसाइल को सुन के उसको हल करती है। इसके लिए आज का ये दौरा रखा गया था। इंशाअल्लाह ताला जो भी काम लिखाए गए हैं वो जल्द से जल्द तकमील किए जाएंगे। मैं मेरी जानिब से जितने भी लोग आज के दौरे में शरीक हुए उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके साथ साथ पूरे ऑफिसर्स का, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत
तेलंगाना के काकतीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंसेज के तलबा की टीम ने ड्राइवर के बगैर ट्रैक्टर को तैयार किया है। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव तलबा के इस नए ट्रैक्टर से काफी मुतासिर हुए। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने इस बात की इत्तला देते हुए कहा कि यह काश्तकारी का मुस्तकबिल है और वह समाजी असर छोड़ने वाले नौजवान ईजाद करने वालों पर जोर देते हैं कि वह इससे मजीद प्रोडक्ट्स लाएं। उन्होंने मजीद कहा कि टी हब हैदराबाद, टी वर्क्स हैदराबादी, वी हब हैदराबाद, रीच हैदराबाद, टीम TSIC जैसे इदारों का क़याम ऐसे तलबा के ताउन के लिए अमल में लाया गया है। तारक रामाराव ने इसकी वीडियो भी पोस्ट की जो एक खुद का ट्रैक्टर है जो बगैर ड्राइवर के काम करता है। जिले मेदक के नासिंगी गांव में एक जोड़ा जरई बोली में मुर्दा दस्तियाब पाया गया। यह वाकया जुमेरात की सुबह के अव्वलीन सातों में पेश आया। पुलिस के मुताबिक 34 साला डी नागेश और 30 साला स्वरूपा की खिदमात मुलाजमीन के तौर पर श्रीनिवास रेड्डी नामी किसान ने हासिल की थी। ये दोनों किसान के मवेशियों को चरवाने का काम करते थे। उनकी नाशें जुमेरात की सुबह एक जरई बोली में पाई गई। यह हनोज वाज़ेह नहीं हो सका कि खुदकुशी का मामला है या फिर किसी ने उनका कत्ल किया है। उनकी नाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मेदक मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाईएस शर्मिला के खिलाफ बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हुक्मरान जमात BRS के लीडर नरेंद्र यादव ने पुलिस से की गई अपनी शिकायत में कहा कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक मामले में मुनक्किदा प्रेस मीट और सोशल मीडिया पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव की शर्मिला ने तौहीन की है। नरेंद्र यादव ने 16 मई को पुलिस से शिकायत की थी, जिसकी बुनियाद पर पुलिस ने शर्मिला के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया। महकमा मौसमियात ने कहा कि हफ्ते को अजला, नलगुंडा, यादाद्री, भोनगिर, नागर कर्नूल, वनपर्ती के बाद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में महकमे ने कहा कि 21 मई को खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, यादाद्री, भोनगिर, रंगारेड्डी, विकाराबाद, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट, जोगुला, बगदवाल में बाज मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। रियासत में आज और कल मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। अजम तरीन दर्जात 41 डिग्री सेल्सियस रियासत के कई मकामात पर दर्ज किया गया, जबकि खम्मम जिले में गुज़िश्ता रोज दर्जात 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रुकन असेंबली कोकटपल्ली एम कृष्णा राव ने हल्का असेंबली कोकटपल्ली के अल्लापुर डिवीजन का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। इस दौरान रुकन असेंबली एम कृष्णा राव ने मुकामी कॉर्पोरेटर समिया गौसुद्दीन के हमरा अल्लापुर डिवीजन के गायत्री नगर में वाक़े पार्क के अहाते में 1 करोड़ की लागत से तामीर करदा ओपन जिम का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद रुकन असेंबली एम कृष्णा राव ने इंडोर स्टेडियम पार्क का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली एम कृष्णा राव ने बताया कि सिर्फ हल्का असेंबली कोकटपल्ली में 90 पार्क, ट्रैक और ओपन जिम कायम किए गए हैं। डिवीजन सदर एल्लैया, गायत्री नगर बस्ती सदर संजीव रेड्डी, सीनियर BRS कायदीन शेख इस्माइल, सैयद निजामुद्दीन, वीरा रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। అల్లాపూర్ డివిజన్లో 1,70,00,000 రూపాయలతో ఈరోజు పార్కు డెవలప్మెంట్లు కోటపల్లి కాన్సన్ ఉన్నటువంటి 90 పార్కుల్లో మొత్తం అన్ని డివిజన్లలో ఉన్నటువంటి రకరకాల పార్కులు, అన్ని పార్కులలో ఓపెన్ జిమ్లు, ఒక బ్రహ్మాండమైన వాతావరణంలో కాంపౌండ్ రేజింగ్ చేసుడు, ఎవరన్నా నైట్ ప్రతి ఇంకే విధంగా ఉంటే కూడా దానిలో కాంపౌండ్ రేజింగ్ చేసి లోపల రాకుండా మంచి గ్రీనరీ చేసి ప్రజలకు ఉపయోగ వాకింగ్ టాకు, ఓపెన్ జిమ్ము, ఇండోర్ స్టేడియంలు అన్నీ కూడా ప్రతి పార్కులు చేస్తూ ఉన్నాం. మన కేటీ రామారావు గారి దయ వలన కూట్పల్లి కాన్సన్ అన్ని పార్కులు కూడా 17,70,00,000 రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ భాగంగా ఇవాళ ఈ 2 పార్కులు మనం ఇవాళ ఫౌండేషన్ వేసుకున్నాం. ఈ పార్కుల వలన వాకింగ్ చేసుకొని కానీ అదేవిధంగా हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ हज हाउस में 2023 हज के इंतजामात की तैयारियां जोर शोर से जारी है। जारी साल आज़मीन हज की रवानगी के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से बेहतरीन इंतजामात किए जा रहे हैं। चुनांचे इस साल तेलंगाना से 8,000 से ज्यादा आज़मीन हज 2023 अदा करेंगे। ताहम आज़मीन हज के लिए 857 वेटिंग लिस्ट कन्फर्म हो चुकी है और उम्मीद
उम्मीद है कि मजीद नशिस्तें कंफर्म होंगे। इस साल हुकूमत हिंद ने SBI बैंक में करेंसी के तबादले के लिए काउंटर भी कायम किया है। वेस्ट जोन कमिश्नर की टास्क फोर्स टीम ने एक हुक्का पार्लर पर दावा करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से हुक्के के अशिया को जब्त कर लिया। बताया जाता है कि कमिश्नर की टास्क फोर्स वेस्ट जोन टीम ने अपने मातहत अमले के साथ एक मुसद्दिका इत्तला पर मासाब टैंक पर वाक़े रेस्टोरेंट कैफे नामी पार्लर पर धावा करते हुए 2 मुलजिमीन जिनमें 22 साल बिलाल और 26 साल अब्दुल कादिर को गिरफ्तार कर लिया, जो गैर कानूनी तौर पर हुक्का सेंटर चला रहे थे। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 27 हुक्के के पॉट्स, 53 स्मोकरकाइल्स बॉक्स, 64 फ्लेवर्स, 10 हुक्का फ्लेवर्स के 4 स्टोर्स, 52 हुक्का पाइप्स के अलावा हुक्के में इस्तेमाल किए जाने वाले दीगर साजो सामान जुमला मालियत 1,20,000 रुपए जब्त कर लिए। रुकन असेंबली के मशीरेड्डी ने जिले बकराबाद के परगी में वाक़ MDO ऑफिस में मुनक्किदा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेक्स तकसीम प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करके इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर रुकन असेंबली के महेश रेड्डी ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूर शुदा 85 इस्तेफादा कुनिंदगान में 85,09,860 रुपए के चेक्स हवाले किए। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए रुकन असेंबली महेश रेड्डी ने कहा कि कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम गरीब लड़कियों के लिए एक नेमत साबित हुई है। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।